Good morning, all of you. Are you able to hear me? Yes, ma'am. Okay, just tell me the last thing I've done in class. The resonance structures of benzene and benzene type compounds, phenol and all of that. Okay, did you all give her any homework? So, ma'am, 2 or 3 resonance structures we had to draw. Okay, for which compounds? I don't know their names, but one of them is benzene and it has sulfur on one of the things. Benzene with what? Sulfur. Sulfur. सल्फर वाला दिया था मैंने. Ma'am, I'll just check in the book. Sulfur with a hydrogen. Can you just share it like on the group? Just the picture of the last page. Ma'am, just a minute. Yeah. पहला वाला नाइट्रोबेंजीन दिया था मैंने. Yes, ma'am. नाइट्रोबेंजीन के लिखे सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. I'm writing them. Just check your answers. Did you get these?
Yes, ma'am. Okay. So how many resonating structures we got? 5. उनमें से stability order क्या होगा? Give me the stability order of these resonating structures. 1 equal to 1 equal to 5 5. greater than 2 equal to 4 greater than 3. Yes. 3. The stability order. मैम सब में ऐसा ही है, तीनों में हाँ. स्टेबिलिटी. Now, can I say nitro group here is withdrawing the electrons by resonance? So it Yes. shows minus R effect. Minus R के साथ साथ it also shows minus I. So both the effects of nitro are withdrawing. It withdraws by resonance also and it withdraws by inductive also. So can I say the ring is deactivated? Deactivated for electrophile to attack. इलेक्ट्रोफाइल ये रिंग पे जल्दी अटैक नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये रिंग पे कौन सा चार्ज मूव हो रहा है? पॉजिटिव. हाँ, and electrophile itself is what charged? Negative. Sorry, नेगेटिव. positive. So will the positive charge नहीं, come close पॉजिटिव. to the ring? पॉजिटिव Will रिपल. it come close to the ring which is positively charged? No, na? नो. ठीक है? So the ring is deactivated by nitro group for electrophilic substitution. In fact, nucleophile जल्दी अटैक करेगा यहाँ पर. Nucleophile क्या होता है? Negatively charged. हाँ. So the ring is activated for nucleophile to attack, but it is deactivated for electrophile to attack. Did you understand what I said? Yes. यस मैम. Okay. नाइट्रोबेंजीन के बाद नेक्स्ट वाला कौन सा दिया था मैंने? Benzene with cyanide as substituent. इसका भी सेम ऊपर जैसे ही होगा रेजोनेंस. दोनों में माइनस आर रीजन. क्या? दोनों में माइनस आर है और माइनस आई है. हाँ. Stability order again same. यस. Yes, ma'am. This compound is known as benzonitrile. इसका नाम नाइट्रोबेंजीन है. और कौन सा दिया था मैंने? एक सेकेंड, आई थिंक ग्रुप पे. ओके. methoxybenzene. Here the atom connected to benzene is oxygen which has lone pair. Now it will become activating for electrophile. Yes, very good. Because what charge is going to move on the ring? Minus. नेगेटिव. So electrophile will attack this ring faster. Am I right? Yes, ma'am. यस. न्यूक्लियोफाइल विल नॉट टच. हाँ, nucleophile repel लो. होगा. हाँ. In fact, repulsion होगा ना nucleophile. हाँ मैम. मैम ये थर्ड का नाम क्या बोला आपने? Methoxybenzene. Methoxybenzene. Also known as anisole.
मैम ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना? हाँ ये सारे एरोमेटिक। वन इक्वल टू 5 बिगर देन 2 इक्वल टू 4, ये सेम ही है। हाँ सॉरी 3 मैम। हाँ r प्लस और i माइनस, r प्लस इज बिगर देन i माइनस। वेरी गुड। So for हाँ, all इतना ही है all रेजोनेंस में। sorry रेजोनेंस में इतना ही है। क्या इतना ही है रेजोनेंस में? रेजोनेंस नहीं 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 नहीं, अभी बहुत कुछ है रेजोनेंस। This compound is chlorobenzene, am I right? Does chlorine atom have any lone pairs here? Does chlorine have No. any lone pair? क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? हैलोजेंस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 7 तो यहाँ तो एक ही दिखाया आपने, और कितने बाकी है? 6 therefore 3 lone Okay. pairs। हाँ, this will have 3 lone pairs. 3 तो इसका रेजोनेंस कैसा होगा? ऐसा ही होगा, am I right? नेगेटिव। yes negative charge। मैम बोलो। मैम आपने इसका जीओसी का एक्सरसाइज 2 का 10 सम बोला था ना? हाँ, कुछ किया? yes ma'am। Were you able to solve? नहीं। हाँ मैम, हुआ ना मैम सॉल्व। मैम पर इसमें ये स्टेटमेंट कितने सारे हैं? एक क्वेश्चन में तो 10 जितना तो ट्रू एंड फॉल्स है। हाँ ठीक है। Anyway पूरा GOC I'm going to solve with you, don't worry. तो ओके ये मैम। हाँ ये है stability order. What is chlorine doing here? Giving electrons by resonance or taking away? giving So it shows plus R effect. प्लस Along with आर plus बिगर R? देन माइनस एंड नहीं, for halogens the resonance माइनस आई बिगर है। हाँ, so resonance कम होता है और मैम इंडक्टेंस ज्यादा होता है। हैलोजेंस का मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओनली सिर्फ हैलोजेंस के लिए ये ट्रू है। ओके, प्लस आर इज ओके मैम। लेस देन माइनस आई। बाकी सारे ऑक्सीजन नाइट्रोजन के लिए प्लस आर इज गोइंग टू बी मोर देन माइनस आई, बट हैलोजेंस के लिए इट इज गोइंग टू बी माइनस आई। मैम अगर ऐसा है तो क्लोरीन एटम को इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहिए ना? हाँ तो ये विड्रॉ भी करता है ना, इंडक्टिव से ज्यादा विड्रॉ करता है ना। अच्छा, क्यों ज्यादा विड्रॉ करता है? लेट मी एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। क्लोरीन का ये जो लोन पेयर है वो कौन से ऑर्बिटल में है? कैन आई से 3p ऑर्बिटल है क्लोरीन का? एम आई राइट? यस। और जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होने वाला है, उसका कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, तो कार्बन ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में लेने वाला है? जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये 2p है कार्बन का, टोपी। तो जब ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा 3p ऑफ क्लोरीन हैज टू ओवरलैप विद 2p ऑफ कार्बन टू फॉर्म दैट पाई बॉन्ड, yes राइट? 3p 2p ओवरलैप फेवरेबल ओवरलैप नहीं होता है, इसलिए रेजोनेंस वीक होता है। difference of energy। यस। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है? 2p में, और कार्बन किस में ले रहा है? टोपी में। तो 2p 2p ओवरलैप फेवरेबल ओवरलैप। हाँ मैम।
समझा? मैम इसलिए हमेशा ओनली हेलोजन में ही इंडक्टिव ज्यादा रहता है। हाँ, अब फ्लोरीन में तो रेजोनेंस भी ज्यादा रहेगा। कुड यू टेल मी व्हाई रेजोनेंस ज्यादा रहेगा फ्लोरीन? उसका भी इलेक्ट्रॉन 2p में ही है इसलिए। हाँ, और कार्बन किस में लेने वाला है? 2p फेवरेबल। 2p A 2p favorable overlap. Am I right? So resonance Yes. is large. Yes. Resonance of fluorine is definitely more than that of chlorine. क्योंकि क्लोरीन में 3p 2p ओवरलैप है और फ्लोरीन में कौन सा ओवरलैप है? 2p 2p. Am I right? 2p But can I say हाँ fluorine मैम। is the most electronegative atom of the periodic table? यस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, हाँ। जिसकी वजह से ओवरऑल इफेक्ट इसमें भी इंडक्टिव ज्यादा ही हो जाता है। ओके, दो रेजोनेंस उसका क्लोरीन से ज्यादा है, बट माइनस आई भी उसका बहुत ज्यादा है। माइनस आई क्यों ज्यादा है? बिकॉज वो सिग्मा बॉन्ड बहुत ज्यादा खींचता है अपनी तरफ। और बहुत ज्यादा क्यों खींचता है अपनी तरफ? प्लस माइनस तो कौन? बिकॉज इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। समझा? हाँ मैम। बहुत ओके मैम, समझा। हाँ, सो फॉर ऑल मैम हैलोजन, एक मिनट। all halogens मैम एक plus मिनट। R is less than minus I. हाँ बोलो। मैम एक मिनट पीछे करो ना, वो लिखने का बाकी है। मैम फ्लोरो में ही खाली ऐसा है, मतलब कि वो 2p फ्लोरीन में 2p करता है रेजोनेंस तो भी भी ज्यादा है, ये- रेजोनेंस भी ज्यादा है, पर उसका इंडक्टिव भी ज्यादा है ना। हाँ मैम। So is the ring activated or deactivated for electrophile? For chlorine it is activated. नहीं, रिंग तो डीएक्टिवेटेड ही है, क्योंकि कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है इसमें दोनों में? माइनस आई आई। डोमिनेट करता है ना। माइनस आई डोमिनेट करता है, मतलब विड्रॉइंग इफेक्ट उसका ज्यादा है एज कंपेयर टू डोनेटिंग। डू यू एग्री? यस, डीएक्टिवेटेड। हाँ विड्रॉइंग मैम। इफेक्ट ज्यादा होता है तो डीएक्टिवेटेड होता है। फाइन। ओके मैम। मैम वो क्या लिखा था उसके नीचे? ये तो क्लोरोबेंजीन। बेटा मैम, क्लोरोबेंजीन। ओके, डन मैम। Now in case of chlorobenzene, chlorobenzene में chlorine is showing plus R effect and minus I. Am I right? प्लस आर मतलब वो Yes, देगा ma'am. इलेक्ट्रॉन बाय रेजोनेंस, और माइनस आई मतलब सिग्मा बॉन्ड्स अपनी तरफ खींचेगा वो। लेगा। बट फॉर क्लोरीन, कैन आई से क्लोरीन इज एन एटम ऑफ द थर्ड पीरियड? Yes. थर्ड पीरियड हैज एम्प्टी d ऑर्बिटल्स। हाँ मैम। तो एम्प्टी d ऑर्बिटल्स में वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है ना। हाँ, ले भी सकते हैं तो वो मैम ले भी सकता है थर्ड पीरियड में। और उसका ऑक्टेट एक्सपांड भी कर सकता है। एम आई राइट? Yes. Now you can see chlorine here has an expanded octet, which fluorine cannot do. Why fluorine cannot do? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। नहीं, fluorine cannot expand its octet. Why fluorine हाँ, cannot? वो एक्सपांड है, बराबर। मैम Does बोलते fluorine बोलते चलो। does fluorine have any empty d orbitals? नो। Fluorine is an element of the second period. Second period elements don't have empty d orbitals. समझा? So Yes, now, ma'am. what effect does chlorine have now on the ring? Can I say
It can donate electrons by plus R. Yes मैम. It can also withdraw electrons by resonance. जैसे empty d orbital है तो withdraw भी कर सकता है वो. और इन दोनों के साथ साथ it also shows minus I effect. Yes मैम. Vedant, you are saying for which atom? 288. Are you saying it for chlorine atom? Okay, okay. So for chlorine, bromine, iodine, they can show plus R, minus R, and minus I. But for fluorine, fluorine can only show plus R and minus I. It cannot show minus R. Why fluorine cannot withdraw by resonance? It already has a completely filled outermost. I mean, it has. And can I say it cannot five expand its electrons. octet because of the unavailability of d orbitals? Yes. So that should be a reason. मैम Have you अपना all- रेजोनेंस कितने तक है? Resonance क्या? कितने तक है मतलब और कितना करना है रेजोनेंस के लिए? अभी तो और चलेगा रेजोनेंस. आज का पूरा लेक्चर रेजोनेंस तो चलेगा. Ma'am, अच्छा, resonance क्योंकि हम लोग का means- ये You all finished writing this? Yes, ma'am. Ma'am, resonance is mainly observed in benzene and benzene-like molecules only. Oh. This also will show resonance. Pi bonds conjugated है ना? Yes, ma'am. तो resonance तो होगा इसमें. ये pi bond यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा. यहाँ पॉजिटिव आएगा. ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव. What is the other possibility? ये यहाँ शिफ्ट हो और ये यहाँ शिफ्ट हो. Am I right? Yes, ma'am. तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा. The middle structure is more stable, Yes, this while is first and last are less stable. yes because of the charge separation. Am I right? Yes, Yes. ma'am. मैम एक्सरसाइज 2 पूरा रेजोनेंस पे है. हाँ हाँ पूरा रेजोनेंस. तो 3 हम भी लोग का रेजोनेंस. रेजोनेंस हो जाएगा उसके बाद हम लोग सॉल्व करेगा ना एक्सरसाइज 2. हाँ 3 भी रेजोनेंस पे ही है. मतलब ऑलमोस्ट पार्ट पूरा चैप्टर का रेजोनेंस है. हाँ डन मैम. मैम इसको क्या बोलते हैं ये जो लिखा है आपने डायग्राम नीचे और स्ट्रक्चर? ब्यूटा 1,3 डाइन. इसमें भी है रेजोनेंस. मैम तो आईयूपीएसी नेम्स में भी होगा तो रेजोनेंस. IUPAC names. मतलब हम लोग ने जो स्ट्रक्चर किया उसमें भी होगा ऐसा बोल रहा हूँ. ये स्ट्रक्चर्स ये खाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसका ब्यूटाडाइन. फाइन. यस मैम. डन हो गया मैम. ऑल ऑफ यू फिनिश. मैम यहाँ पे प्लस आर या फिर माइनस आई भी करे. किसमें? ये ब्यूटा
वन नहीं, को इसमें मत ऐसा दिखाइए। कुछ नहीं है, इसमें तो मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस है, प्लस आर माइनस आर ऐसे कुछ नहीं है, खाली रेजोनेंस हो रहा है। ओके ठीक है। प्लस आर माइनस आर ये सब ठीक कोई है। फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है, फाइन। ओके मैम। Now there are questions in the booklet saying that can this particular functional group show resonance? So what you'll do, just join this with a benzene ring and check whether इसका resonance होगा कि नहीं. Resonance Yes. होगा, हाँ होगा ना, this will act as a withdrawing group, am I right? So this will show resonance. Are हाँ you मैम। understanding? यस मैम। Will this group show resonance? NH2. अगर खाली आपको ऐसा यस पूछा मैम। है, will NH2 show resonance? So what you have to do is No. just join this with a benzene ring. बेंजीन बेंजीन के साथ होगा, पर ये खाली होगा तो नहीं होगा। नहीं, पर ज्वाइन करके ही देखना है आपको, समझा? हाँ मैम, तो यस मैम। ये दिस इज द प्रीवियस पेज 18वां। मैम आपने जो अभी सिखाया ना हम लोग को, ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर, उस पर भी 2-3 क्वेश्चन है कि गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग। हाँ हाँ, will this show resonance? They'll give you just NH3 plus, तो उसको बेंजीन से जोड़ दो। Will this show Yes, it resonance? will. लोन पेयर है to get Yes. inside? नहीं, बट मैम वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है ना। अगर वो विड्रॉ करेगा तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपांडेड हो जाएगा। तो नहीं नहीं। ये एक और अगर बॉन्ड बन गया, so this is going to be the structure. Give me the total electrons surrounding nitrogen. No, ma'am, expanded octet does not exist This in is totally nitrogen. unacceptable structure. Okay, unacceptable है ये। Unacceptable बोला है मतलब expanded octet होता है, which is not at all feasible for nitrogen because nitrogen cannot expand its octet. Am I right? मैम अगर फॉस्फोरस होता है तो हम बोल सकते हैं ना कि ऐसा हो सकता है। हाँ, फॉस्फोरस के साथ हो सकता है। तो फॉस्फोरस अगर आपको ऐसे दिया हुआ है pH 3+, and if this asks that can this show resonance, so just join it with the benzene ring. This can show resonance because phosphorus has an empty d orbital. Vacant d orbital. Yes, fine. मैम एक बार नाइट्रोजन का समझाओ तो। नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता है ना। अभी इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडिंग नाइट्रोजन। एम आई राइट? अगर ये पाई बॉन्ड बाहर शिफ्ट हुआ तो नाइट्रोजन के सराउंडिंग में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कहाँ रखेगा वो? Does it have नहीं हो सकता। हाँ बराबर। does it have empty pockets to keep? When I'm saying pockets, I mean orbital. Does it have empty orbitals to keep those electrons? No. नो। समझा या नहीं समझा? समझ गया मैम। Will this group show resonance when bonded to a conjugated system? SH. Yes. So how will you check? Just हाँ। bond it with the benzene ring. इसके बाद लोन पेयर है, बेंजीन राइट? 2। हाँ मैम। तो ये प्लस आर दिखा सकता है, बट सल्फर के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स भी है, am I right? यस मैम, एक्सपांड भी कर सकते हैं। हाँ, तो प्लस आर की जगह ये माइनस आर भी दिखा सकता है। दोनों, और माइनस आई भी दिखा सकते। हाँ, माइनस आई तो होता ही है, सारे फंक्शनल ग्रुप्स का माइनस आई। सो सल्फर कैन शो बोथ प्लस आर एंड माइनस आर। माइनस आई तो होता ही है, समझा? हाँ मैम।
Can the lone pair of this nitrogen participate in resonance? Yes. Is it conjugated? No. Lone pair है, sigma bond है, फिर pi bond है. So can this participate in resonance? No. Can this participate in resonance? Yes. Yes, B and no B. Lone pair, sigma bond, pi bond. तो अब ये participate कर पाएगा, समझा? मैम बट मैम, वो थोड़ा दूर ऑल्टरनेटिंग है नहीं है, आई मीन ऑल्टरनेटिंग कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए करने के लिए ये तो पाई बस इलेक्ट्रॉन्स कम से है, कम पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन्स ले लो, पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, तो ऑल्टरनेट हुआ ना. ओके. Can this participate in resonance now? Pi Yes, electrons, but pi electrons, only pi electrons, pi no, electrons कैसे no. participate करेगा resonance में? तो no नहीं resonance. नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं. अरे समझ रहा है कि नहीं? हाँ मैम, समझ गया. Can the lone pair of oxygen participate in resonance? Yes. Pi electron, sigma electron, pi electron, समझा? Yes. हाँ मैम. Can the lone pair participate here in resonance? Yes. आ रहा है समझ में? हाँ मैम. मैम एक बार ऑर्डर बोल दो तो पहले क्या आएगा अपना पाई बॉन्ड, क्या बोला था आपने? pi electrons, sigma electrons, pi electrons. लोन पेयर को pi electrons ही ले लो. यहाँ पे नहीं होगा रेजोनेंस. हाँ, यहाँ पे नहीं होगा. मैम मेरे को भी कंफर्म करना था क्योंकि बोला ना रीजन, मैं सोच रहा गया ये कैसे होगा. कौन सा? ये आपने जो भी अभी बोला ना कि नो रीजन, लास्ट वाला. ये pi electrons है, फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, फिर सिग्मा है, फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना. तो पाई के बीच में दो इसलिए नहीं होगा. हाँ, इसलिए नहीं होगा. पाई सिग्मा पाई होना चाहिए तो ही को रेजोनेंस हो सकता है, समझा? हाँ मैम, बस वही पूछ रहा था. इस मॉलिक्यूल में लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पर रेजोनेंस होगा कि नहीं? मैम किधर, मेरे को तो दिखती नहीं. जो सर्किल किया है मैंने यहाँ, हाँ हाँ. क्या मैम? ये मैंने यहाँ पर सर्किल किया है, इसमें लोन पेयर तो पार्टिसिपेट नहीं करता है रेजोनेंस में, बट विल द मॉलिक्यूल शो रेजोनेंस? यस. हाउ? ये शिफ्ट हो सकता है ना, एम आई राइट? समझा? मैम ये लास्ट वाला नहीं समझा. Okay, I'll do it on the रेजोनेंस. next slide. I will do it. Fine. I'll just show it to you, then I'll get back to the same. This lone pair cannot participate in resonance. Do you agree? Yes. Because lone pair है, pi electrons, फिर pi electrons यहाँ पर है. So lone pair will not participate. But can I say these two pi bonds can participate in resonance because they are conjugated? तो ये यहाँ Yes. शिफ्ट हो, ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है. अगर मैम वो एक्सपांड कर पाता तो माइनस आर इफेक्ट दिखाता ना. ये एक्सपांड कहाँ किया है इसने, बताओ? Has it expanded its octet? नहीं, अगर कर पाता तो ऐसा पूछ रहा हूँ. हाँ, अगर कर पाता तो क्या? Then it could have तो कौन सा participated. इफेक्ट आता? आर प्लस या माइनस ऐसा पूछे. I'm not getting the question. What you want to ask? Ma'am, he is trying to say that if nitrogen could expand its octet,
would it show plus R or minus R? But in this case, वो इलेक्ट्रॉन दे तो सकता ही नहीं है बिकॉज डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. इन दिस केस वो सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है. This can only accept by resonance. It cannot give ना, क्योंकि ये pi electrons और ये pi electrons conjugated नहीं है. Am I right? yes Conjugated मतलब alternate होने चाहिए. pi electrons होना चाहिए, फिर हाँ sigma electrons, फिर pi electron यहाँ होना चाहिए था. समझा? yes ma'am. जैसे इसमें रेजोनेंस होगा, क्यों होगा इसमें? alternative हाँ, pi electrons है, sigma pi electron है, bond sigma बट इसमें वो पॉसिबिलिटी नहीं समझ है. गया हाँ, इसमें जो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, ये इनके बीच में, ये पाई बॉन्ड्स के बीच में रेजोनेंस है, लोन पेयर का रेजोनेंस नहीं है इसमें. समझा? हाँ मैम समझ गया मैम पीछे करो ना मैम हाइपोथेटिकली नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन प्लस देके ट्रिपल बॉन्ड नहीं एग्जिस्ट करवा सकता. इसमें नेक्स्ट पेज पे जो स्ट्रक्चर है उसमें. और कार्बन का ऑक्टेट का क्या होगा उसमें? ओके, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज. नहीं, I'll show it to you, don't worry. These things have to be clarified right away, okay? You cannot take these queries ahead, otherwise आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा अगर रेजोनेंस नहीं समझा. रेजोनेंस is the backbone of organic chemistry. मैम मतलब रेजोनेंस का एकदम पक्का हो गया तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पक्का हो जाएगा ना ऐसे तो नहीं बोला मैंने, बट ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है? ओके मैम हाँ. मैम इसके बाद कौन सा चैप्टर है इसके बाद नेक्स्ट आइसोमेरिज्म होगा. Did you all finish writing मैम this? एक तो हाँ मैम पर कितने डायग्राम है मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैंने सारे किए कि नहीं पूरे पेज Diagram, में एक मिनट structure. स्ट्रक्चर है बार बार बता दे अभी उसका आदत हो गया है ये एक है बेंजोइक एसिड का है, दूसरा एनिलीन का है, तीसरा ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ वाला हाइड्रोजन ये, सल्फाइड वाला भी. सिक्स्थ ये है, सेवेंथ ये है, एट्थ इसको ले लो ना, ये वाले को, और नाइन्थ आपका फॉस्फोरस वाला है, 10th ये है. समझा? लिखे हैं ये सारे 10. यस मैम मैम. हाँ मैम लिखिए एक एक बाकी है शायद मैंने माइनस हो गया मैम अच्छा, इसमें अभी क्या क्वेश्चन है आपका? यू सेड you were saying something about Yes, the two electrons from the nitrogen lone pair can form a triple bond with the carbon. you want me to shift it here. Yes, So what structure am I getting? कुछ अजीब सा ही. अजीब सा तो है, n का तो ऑक्टेट कंप्लीट है अभी भी, और ये कार्बन के पास एक H है, डोंट फॉरगेट दैट. Okay, now give me the total bonds formed by carbon. 5, which is not possible. Got it? रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल अगर ऐसा कुछ होता,
मैम इधर खाली बॉन्ड कर सकते थे रेजोनेंस ऊपर। अब हो सकता है, अब बताओ कैसे होगा। मैम वो शिफ्ट हुआ ये हो साइमल्टेनियसली, सकते ये हैं मैम शिफ्ट हुआ, रेजोनेंस। समझा। हाँ मैम। अब कार्बन के कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? शायद 1 मिनट, इसमें H मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया है गलती से। मैम मेरे को भी समझ, मैं वही सोच रहा था। अब 4 बॉन्ड्स ही हैं कार्बन के। H मैम मैंने ऐसा पहले हो ही सकता है कि हाइड्रोजन में वैसे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेके एस्केप नहीं कर सकता। किसमें? जो ऊपर सर्कल को हमने क्रॉस किया, हाँ, तो अभी हमने नाइट्रोजन के लोन पे से इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दिए। अभी कार्बन के पास तो रखने के लिए ऑर्बिट ही नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को देकर हाइड्रोजन एस्केप नहीं कर सकता। H माइनस, बिल्कुल नहीं, H माइनस कैसे निकलेगा? और वो देने के लिए आपको एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगा, रूम टेम्परेचर पे तो नहीं होगा ना ये सब। यस मैम। हाइड्राइड निकलना नामुमकिन है यहाँ से। ओके, H minus will never come out from there. एम्पल ऑफ एनर्जी है ये। Hmm. So now we move on to applications of resonance. ओह हाँ मैम, नेक्स्ट। Did you finish writing all this? यस मैम। मैम क्रॉस वाला लिखना बाकी है। आपने क्रॉस कर दिया तो मैंने लिखा ही नहीं वो। डन मैम। Now let me explain one more concept and then I'll go for the applications. मैम इसमें रेजोनेंस होगा। क्या ऐसे दोनों में होगा? हाँ मैम दोनों में। दूसरा अच्छा, वाला अब ध्यान, डाउटफुल है। हाँ, जो राइट हैंड साइड पे स्ट्रक्चर है उसमें रेजोनेंस डाउटफुल है। क्यों? पाई हम्म, इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, है ना? तो दोनों में से किसी भी साइड से रेजोनेंस हो सकता है। हाँ, अब एक डिफरेंस बता रही हूँ दोनों में। कहना ऐसे रेजोनेंस यहाँ पर जब होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होके ये यहाँ शिफ्ट होगा। हाँ इसमें थोड़ा देर ज्यादा लगेगा और इसमें दोनों साइड इक्वल है सेकंड में। ये डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा ऐसे यहाँ पे, फिर इसके नेगेटिव क्या और होगा? वापस नेगेटिव। ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकता है, एम आई राइट? हाँ Giving you this form, correct? So can I say here यस मैम। रेजोनेंस कंटिन्यूस हो रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होके इसको शिफ्ट करा रहा है, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो शिफ्ट हुए हैं वो इसको शिफ्ट करके इसको शिफ्ट करा रहा है. So there is continuous resonance in one particular direction. Am I right? यस This type of conjugation is known as extended conjugation. कंटिन्यूस हो रहा है और एक्सटेंड भी हो रहा है। हाँ, ये extended है आगे तक. इसमें वैसा नहीं होगा. इसमें क्या होगा? ये लोन पेयर या तो इस तरफ शिफ्ट होगा, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा. एंड व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटी?
मैम वो लेफ्ट मैम साइड हो जाएगा। हाँ, इसी में से this can shift here and this can shift here. Am I right? यस मैम। मैम इसमें ऐसे डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कोई भी साइड चले सकते हैं, हाँ। इसलिए एक्सटेंड फॉरन। अब इसमें जो लोन पेयर है, it can shift either on this side or on this side. बट इसमें जो है, वो जब लोन पेयर शिफ्ट हो रहा है तो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। मतलब लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है। देखो, पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कंटिन्यूस एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स। एम आई राइट? Here the flow यस of electrons can either be in the right direction or it can be in the left direction. There is no continuous extended system here. This type of conjugation in which the lone pair or the pi electrons can move on either of one side, matlab is side ya is side. This type of resonance is known as cross conjugation. क्रॉस कंजुगेशन। Extended conjugation is always more stabilizing than cross conjugation. I repeat, extended conjugation will always give more stability as compared to cross conjugation. मैम therefore extended conjugation is bigger than cross conjugation. Bigger नहीं, stable you can say. ज्यादा होता है, extended conjugation हमेशा ज्यादा होता है। क्योंकि मैम हम लोग जैसे ये इसका कर रहे थे ना ऑर्डर, तो उसमें जो ज्यादा स्टेबल है वो हम लोग पहले लिख रहे थे, और जो कम स्टेबल है वो उससे स्मॉलर थे, इसलिए उसको बाद में लिख रहे थे, वो तो इसलिए पूछा। स्टेबिलिटी ऑर्डर दे रही थी ना, तो वैसे ही मैं यहाँ पर भी स्टेबिलिटी ऑर्डर यही बता रही हूँ कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन will always stabilize the molecule more as compared to cross conjugation. ओके मैम। मैम इसका कोई रीजन है क्या why extended conjugation is more stable than cross conjugation? Delocalization अगर cyclic system में होता है या इट्स अ कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन, तो ओवरलैप जो होता है ऑर्बिटल्स में, उसमें डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये वर्ड अबाउट डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, राइट? Yes ma'am. That diffusion of the electrons there is much more favorable. Okay, जिसकी वजह से एंट्रोपी और बढ़ता है मॉलिक्यूल और स्टेबिलिटी बढ़ता है। So now write down the stability order. Extended conjugation is more stable than cross conjugation, which is again more stable than only conjugation. And what is only मैम ये तो conjugation? याद रहेगा। Only conjugation ये है, इसमें only conjugation है, समझा? तो मैम हम मैम लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और ओनली कॉन्जुगेशन में सिर्फ इतना फर्क होता है दैट उसमें एडिशनल पाई बॉन्ड रहेगा। एडिशनल पाई बॉन्ड होता है क्रॉस में, और एक्सटेंडेड में एडिशनल पाई बॉन्ड होता है। So this is an example of conjugation. ये ऊपर वाला, मिस वेट। ये वाला क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला है, और ये वाला एक्सटेंडेड वाला।
लिख लिया सारा? एक मिनट। डन मैम। सबका हो गया है? Yes, ma'am. Now let us go for the applications of resonance. What is the formula for calculating the bond order when a molecule shows resonance? You have done this in bonding. Number of bonds upon number of bonding atoms. Bonding atom pair. बॉन्ड ऑर्डर। Okay, so this is the formula for calculating the bond order. Number of bonds on the central atom which are involved in resonance divided by the total number of resonating structures. Say for example, I write benzene. Benzene के कितने resonating structures लिख सकते हैं हम? ये दो है ना canonical structures, am I right? 2। अब how many bonds on the carbon are involved in resonance? Let me take this carbon. कोई भी carbon ले सकते हो. उसके कितने bonds resonance में हैं? एक ही. 1। एक कैसे? ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है. दूसरे स्ट्रक्चर में क्या हो जो रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में वो तो सिर्फ पाई बॉन्ड ही है ना. नहीं, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन रहा है और ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये सारे जो बॉन्ड्स है उसके पार्टिसिपेट, सिर्फ सीएच बॉन्ड नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस. तो फिर 3. टोटल हाँ, सो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसमें? 3 bonds on the carbon are involved in resonance divided by total resonating structures which are 2. 2 which is 0.5 1.5. हाँ, मतलब neither single bond nor double bond, it is between a double and single bond, which confirms the bond length also. Bond length in benzene. It was exactly the average of Yes. double bond and single bond. Fine. मैम बोलो. 3 कैसे की ना, वो वापिस बोलो तो एक बार, मेरे को भी याद नहीं ये है। कार्बन के कितने बॉन्ड्स है रेजोनेंस में? ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस में है ना उसके, हाँ तो इसलिए 3 बॉन्ड्स उसके रेजोनेंस में है, सिर्फ सीएच बॉन्ड नहीं है रेजोनेंस में. तो 3 बॉन्ड्स उसके रेजोनेंस में है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बेंजीन में 2 हैं. ओके मैम। लिखा? नो मैम।
हो गया? Yes, ma'am. Give me the bond order of the CO bond in carbonate ion. इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे पहले तो? एक ये है 3. जहां पर यहाँ पे डबल बॉन्ड है। 4/3. हाँ, अब दूसरे में यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, am I right? हाँ, और तीसरे में कहाँ होगा डबल बॉन्ड? नीचे. वो राइट वाले ऑक्सीजन पे, करेक्ट? Yes, ma'am. तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं मुझे? 3. और कार्बन के कितने बॉन्ड्स इन्वॉल्व है रेजोनेंस में? 4. हाँ, so bond order will be 4/3. 4/3. समझा? हाँ, ma'am. फॉस्फेट में बताओ PO bond order. PO bond order in phosphate ion. 5/4. Yes. Yes, ma'am. 5/4. 4 structures, so total 5. हाँ, 4 स्ट्रक्चर्स आएंगे। एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, दूसरे में डबल बॉन्ड यहाँ पे Shift लिखोगे, होगा. तीसरे में डबल बॉन्ड यहाँ तीसरे में लिखोगे, इधर और ऊपर. फोर्थ में इधर। और टोटल बॉन्ड्स ऑन phosphorus which are involved in resonance are 5. 5. आ रहा है कि नहीं समझ में? अरे मैम ये नहीं, वो तो मेरे को खाली स्टार्टिंग में डाउट था, मेरे को याद नहीं था ना, इसलिए। बाकी अभी आ गया मेरे को। मैम इसके ऊपर क्वेश्चन आ गए तो कैसे टाइप के क्वेश्चन? खाली एक ही स्ट्रक्चर देके क्या वो लोग? हाँ, और बॉन्ड ऑर्डर पूछेंगे। ये लिखे दो, ये लिखे दोनों। मैम वो स्ट्रक्चर देंगे ना, एक तो स्ट्रक्चर देंगे ना। नहीं, they can just give me the bond order in PO4 3-। हाँ तो स्ट्रक्चर तो तुमको मैम आना इसका क्या होगा? चाहिए। अरे यही तो है। अच्छा हाँ हाँ, मतलब IUPAC जो सीखा है उसमें से स्ट्रक्चर कैसे बना दे वैसे इसमें करना है। हाँ, हाँ अच्छा है, किया है तो काम तो आएगा। अरे हो गया। यस मैम। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ कितना होता है? मैंने लिखवाया था ना। क्या मैम वापस बोलो तो? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इतना होता है ना। हाँ मैम आपने कार्बन बोला था कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.34 एमपीएम। 1.54. हाँ, अब इस मॉलिक्यूल में will this be 1.34 1.34 and this be 1. उनके उनके बीच में ही कुछ होगा बिकॉज Can I say this bond will be 1.5 slightly longer than, sorry, longer than 1.34? Why it will be longer than 1.34? it can have resonance.
तो रेजोनेंस में ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो रहा है, एम आई राइट? Yes. इस स्ट्रक्चर में वो डबल बॉन्ड है, एम आई राइट? अगर इसका हाँ। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखूंगी तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होगा, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस। उधर इन माइनस। पर अब भी इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे Yes. डबल बॉन्ड है। So can I say this double bond has some amount of single bond character also? Yes, yes. तो the double bond length 1.54. 1.34 नहीं होगा, यहाँ पे 1.34 से थोड़ा ज्यादा होगा, correct? Because it has some amount of हाँ single मैम। bond character. What about this bond, C2 C3 bond? Will it measure? 1.54. Slightly 1.54. shorter than 1.34. Very good. This will be slightly shorter than 1.54 because this has a partial double bond character. आ रहा है समझ में? हाँ मैम। Okay? थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है इसमें, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बिकम शॉर्टर देन 1.54. मैम पर इसमें एक्चुअली करना क्या है, They'll ask you ये तो समझ में आ गया। whether the bond length will be 1.54 or less than that या more than that, ऐसे कुछ पूछे। अच्छा क्वेश्चन मैम, एक क्वेश्चन पूछा ना तो समझ में आ Can जाएगा all पूरा। these bond lengths be same? Will all the bond length be same here? No. नो। And what is the reason? Can I say these two structures will contribute less? This will contribute more Yes. to the resonance hybrid because this is more stable than these two. यस मैम। Why is this more stable than these two? No formal charge. Very good. So this is more contributing to the resonance hybrid as compared to these. तो इसमें ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड हमेशा इन दोनों से लॉन्गर ही रहेगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, समझा? हाँ मैम। हाँ, बट फिर भी इसका बॉन्ड लेंथ 1.54 नहीं होगा, 1.54 से थोड़ा सा कम होगा। कम होगा, और ये बॉन्ड लेंथ 1.34 नहीं होगा, 1.34 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ज्यादा। फिर भी डिफरेंस आएगा बॉन्ड लेंथ में। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? हाँ मैम समझा। मे बी दिस गोज टू 1.38 मैम ये and this exact will figures है। 1.48 1.48 समझा? ओके। नहीं, ये हाँ एग्जैक्ट वैल्यूज समझ तो गया। नहीं ले रही हूँ, ये एग्जैक्ट वैल्यूज है ये जो मैंने दिए। So this is going to be Okay. shorter than 1.54 and this is going to be slightly longer than 1.3. Is that understood? Yes मैम। यस मैम। मैम एक मिनट लिख लेता हूँ। हाँ, Ma'am, reason being there is some kind of single bond character observed in the double bond, right? yes. Compare the bond lengths ABC. In this, will they be of C equal? will be C will be shorter, and A and B will not be equal to 1.34, but less than 1.34, but more than that of C. They will be longer than C. Can I say A और B तो equal ही होंगे? C bigger than क्योंकि इसका A equal रेजोनेंस to जब B. यहाँ होगा, इसका भी रेजोनेंस हो सकता है, am I right? Yes मैम, C bigger than A equal to B. Very good. Could you explain how? मैम C का ज्यादा रहेगा ये Can I दोनों say से, ये जो और बॉन्ड है इसका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों ज्यादा बढ़ेगा? हाँ मैम। क्योंकि इसका मैम यहाँ इधर से भी से भी हो आएगा सकता है, और B से भी आएगा। ये एक्चुअली क्रॉस कॉन्जुगेशन है, या तो यहाँ से आ सकता है या तो यहाँ से, am I right? यस मैम। दोनों साथ में नहीं आएंगे, या तो ये साइड से आएगा ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, या तो ये साइड से आएगा ये पाई बॉन्ड। बट कैन आई से दिस विल हैव मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर एज कंपेयर्ड टू दिस? A and B. Why it will have more single bond character? Because both these pi bonds here
when they are shifting, this gets a single bond character. Are you understanding? Yes, ma'am. So A and B will be equal and they are going to be shorter than C. Smaller to C. C will have more single bond character. And why it will have more single bond character? Because it is getting conjugation from this side also and this side also. Cross conjugation. Yes. Okay. मैम आपने जो एम्पियर लिखा है एग्जैक्ट वैल्यू वो हम लोग को याद करना है क्या या फिर नहीं करेगा हाँ, तो ये चलेगा? वाले करने हैं, ये वाले. वो मतलब क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कितना? ओके मैम, ठीक है. Have all of you understood this part? नहीं समझा तो पूछ लो. Have you understood this part? Why no answer? Yes ma'am, understood. ओम खाली तुम ही बता रहे हो, बाकी सबका क्या है? I don't know. Nobody speaks out. Atharva, have you understood? Okay. What about Aisha? Yes, ma'am, understood. Okay. What about Disha? Disha, have you understood this part? Ritvi? Okay. Then Lakshmi, what about you? Okay. Vedant, Miley, Yes, ma'am. is it Miley or Mayol? I can't get that name. Mayol. Is it Mayol, no? I think Mayol is the name, no? Nishi, what about you? Nishi, Ojas? Okay. Ojas said yes. Om, तुमने तो पहले ही बोल दिया था. Pranav? Okay. Saad? Saad, Samyak? Samyak, what about you? Shreyans? Siddhant? Sushmita? वैभव, यश, दोनों यश.
and Tirth. I think few students still have not replied me, and what is the reason for that? या तो वो लोग सुन नहीं रहे हैं, बस लैपटॉप चालू करके या फोन चालू करके ऐसे ही, आई डोंट नो. There are still many people who have not answered me. दोनों यश ने नहीं जवाब दिया है. सम्यक ने नहीं दिया है. मायाल ने नहीं दिया है. I don't know where these people are. Okay, Tirth is not connected to audio. Fine. What about the others? Please make the session interactive. हाँ, ऐसे खाली ऐसे बैठे मत रहो. बस बैठे रहना है. You will get tired and you'll just go off, close off to sleep also. No, कुछ interest नहीं बचेगा. So at least कभी ना कभी ऐसे मतलब जो नहीं समझ रहा है या कुछ difficulty है, at least unmute yourself, speak to me. That will help you. थोड़ा classroom environment लगेगा, वरना तो I don't know what to say. Okay. Now this compound is naphthalene. Have you heard about naphthalene? Have you heard about And what? naphthalene? Yes, ma'am, naphthalene. हाँ मैम. Naphthalene ये वो होते हैं, moth balls होते हैं, वो cockroach repellent होता है. देखो white color के होते हैं. इनका एक अजीब odor होता है. तो मैम naphthalene ma'am. वही है ना जो क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन से भी मिलता है. किससे? Crude oil fractional distillation. Or I think that's naphtha. हाँ, that is naphtha, not naphthalene. Now these are the resonating structures of naphthalene. ठीक है. अब इसमें देखो, I'm numbering this, I'm naming this ring as A and this as B. लेफ्ट वाले रिंग को A दिया है और राइट वाले रिंग को B दिया है. लेबल किया है मैंने. Out of these three resonating structures, the most stable is the first one. And why is the first one the most stable? If you look into the first one, can I say ring A has a benzenoid structure, 6 pi electrons? मैम Yes. मैम एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और एक्सटेंडेड है. रुको, ring A benzene structure है, am I right? Yes. ma'am. Ring B भी benzene है. Do you agree? हाँ. Yes. Pi ma'am. bonds, single bond, pi bond, single bond, pi bond, single bond. ये भी benzene जैसा ही है. Alternative. So both here have benzenoid structures, correct? Yes. Here ring A, can I say it is benzenoid and ring B is non-benzenoid? Yes. Yes ma'am. इसमें ring A is दोनों में से कोई भी नहीं है. ये है ना B है. हाँ, तो इसमें ring B benzenoid है, ring A non-benzenoid है. इसमें ring B non-benzenoid है, ring A benzenoid है, और इसमें दोनों benzenoid है. So this is the stability order. Stability is 1 1 equal
bigger than 2 equal to 3. Yeah, okay. Now if they ask you the bond length, इसका नंबरिंग ऐसे होता है. If you are asked to compare the bond length between carbon 1 and carbon 2 and carbon 2 and carbon 3, this bond length with this bond length, how would you compare? मैम Would the क्या एक bond बार length- बोलो तो मिल bond length पूछा है between C1 C2 and C2 C3, इनका bond length compare करने बोला है. One two is slightly shorter than 2 3. C2 और C3 बिगर है. हाँ, reason. डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच. आई मीन उस डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है एंड 2 and 3 सिंगल बॉन्ड है और इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. वेरी गुड. अब C1 C2 देखो, इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, am I right? इस स्ट्रक्चर में C1 C2 के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड आ गया, am I right? सिंगल. और इसमें फिर क्या है? इसमें डबल. So can I say double bond character here will be more as compared to single bond character? Yes. Because दो resonating structures में double bond आ रहा है between C1 and C2 और एक resonating structure में single bond आ रहा है. Are you understanding? So C1 मैम एक C2, बार रिपीट करो. अच्छा ये तीन resonating structures हैं. हाँ. उसमें structure 1 में जो दिया है 1 और 2 के बीच में double bond है. Yes. फिर next structure में इसके बीच में क्या है 1 और 2 के बीच सिंगल. में, और फिर क्या है? सिंगल बॉन्ड. डबल. तो कहना है डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि दो बार डबल बॉन्ड आ रहा है और एक ही बार सिंगल बॉन्ड आ रहा है दोनों के बीच में. हाँ. यस. हाँ, अब C2 C3 कंपेयर करो. यहाँ पर क्या है? सिंगल. यहाँ पर, डबल. यहाँ पर. सिंगल. तो कहना है Single C2 bond C3 ज्यादा. bond will have more single bond character with little amount of Yes. double bond character, and C1 Yes. C2 will have more double bond character with little amount of single bond character. Did you understand this? Yes, ma'am. So C2 C3 bond will have more single bond character, Single bond. and C1 C2 bond will have more double bond Double character. bond. So C2 C3 bond will be longer than C1 C2 bond. Did you understand this? Yes, ma'am. Yes, yes. 1.54 और ये 1.34 इसलिए ये बड़ा है. C2 C3 सिंगल बॉन्ड. 1.34 तो स्टैंडर्ड है, जो डबल बॉन्ड का वैल्यू होता है वो 1.34 है. ये बॉन्ड डबल बॉन्ड हाँ. नहीं है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है बट उसमें पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी आएगा. Am I right? Yes, ma'am. So this हाँ bond will समझ be गया मैं. slightly longer than 1.34 and this bond will be slightly shorter than 1.54. Shorter. Do you understand? Yes. I think second exercise आप खुद से कर सकते हो पूरा. Mostly सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस तो मैंने सॉल्व कर लिए हैं आप लोगों के साथ. मैम अभी सॉल्व करना है. अभी नहीं, अभी नहीं. मैम हम लोग कौन सा एक्सरसाइज साथ में सॉल्व करने वाले हैं? घर पे करोगे ना एक्सरसाइज. अभी होमवर्क तो करोगे ना? हाँ मैम वो तो करेंगे. होमवर्क करोगे तो ये एक्सरसाइज कर लेना उसमें. एक्सरसाइज 2. यस मैम. इवन मैम एक्सरसाइज अगर 3. डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछते हैं. हाँ, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 दोनों करने हैं. अब नेक्स्ट लेक्चर कब है? कल है ना? हाँ कल है मैम, कल है. 2 और 3 ट्राई करना आज, ठीक है? ठीक है मैम. Ma'am, actually we have exams. विच एग्जाम्स? College. कॉलेज एग्जाम आज है? इंग्लिश है. हाँ मैम आज फिजिक्स है और कल इंग्लिश.
20 को 20 को केमिस्ट्री है, तो कब खत्म हो रहे हैं कॉलेज एग्जाम्स? 20 तारीख को 20 तारीख। लास्ट ही आज क्या केमिस्ट्री, है? आज 13th है। एक That means हफ्ता 7 पूरा more है days you're not going to do anything. ये जेई मतलब की होमवर्क थोड़ा हो सकता है। जेई की पढ़ाई, ये तो अभी हाल ही एमसीक्यूज होगा ना आपको कॉलेज एग्जाम्स का? नहीं मैम, रिटर्न है। Oh, ma'am, objective plus subjective. अच्छा, subjective is also there. तो how you are giving? You are giving offline or online? Online. तो कौन सा तुम पढ़ के देते हो? ऑनलाइन ही तो है। ऑनलाइन लिखोगे कैसे वैसे तो? Ma'am, we'll write it on the paper and we'll upload it. अच्छा अच्छा, तो सचमुच पढ़ के दे रहे हो या ऐसे ही कॉपी करके दे रहे मैम जब भी फेस में एमटी था तभी कॉलेज ने छुट्टी दिया। अब जब कॉलेज में यूटी है, हमको कम से कम लेक्चर्स तो एक कम करना चाहिए। हो? ओ माय गॉड, 7:30 to 5 o'clock non-stop. what expectations! Please stop thinking about vacations now, okay? No vacations for you. Lectures जैसे चल रहे हैं अभी, हफ्ते में कितने lectures हो रहे हैं, कितने दिन हो रहे हैं lectures? It's 5 days Monday a to week, Saturday. 3 lectures each day और फिर 3 डाउट लेक्चर्स कभी भी हो सकते हैं वो। You are blessed to have this timetable. Within few months, your timetable will change. You'll have lectures almost every day. ये 2 days जो off मिल रहा है वो नहीं मिलेगा आप लोगों को, okay? नहीं Ma'am, मैम, but फिर then we संडे have संडे college, right? पीडब्ल्यूटी आ जाता है ना। हाँ, तो संडे को आपको जो TWT रहेगा वो रहेगा, और सैटरडे लेक्चर्स चालू हो जाएंगे। Ma'am, So- Wednesday and Saturday we have college, 9 to 2. हाँ, so that तो you'll have only, and college days पे evenings में you'll have doubt lectures, JEE के doubt lectures। हाँ Yes, वो ma'am. अभी भी हो ही रहा है ऐसा। हाँ, और जो सैटरडे वेडनेसडेज एंड आपको अगर छुट्टी सैटरडेज मिल डाउट रही है, लेक्चर है। मतलब जो एक दिन हफ्ते में छुट्टी मिल रही है वो नहीं मिलेगी आपको, ठीक है? मैम आप हमको डरा रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जो होता है एवरी ईयर वही है। स्टार्टिंग में बच्चों को 2-2 दिन मिल जाता है, पर बाद में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिकॉज syllabus flow is going to become, you will not be able to handle, ऐसे हो जाएगा अभी। इसलिए मैंने तुमको पहले ही कहा था बैकलॉग सारे कंप्लीट कर लो। haven't I told you this? एक बार 12th चला आएगा तो 12th आएगा और जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा तुमको कि क्या हो गया 12th में। कब आया 12th, शुरू हुआ, कब चला गया, you will not realize. It's going to be that मतलब चीजें इतनी फास्ट हो जाएगी वहां पर, they will actually take pace, okay? They'll speed up. You'll have 3 tracks for the individual मैम subject. लेक्चर्स सून ऑफलाइन चालू होने वाले हैं। Offline भी हुआ तो भी you'll have 6 days a week, ना? You'll have to come to college 6 days. नहीं, आई मीन ऑफलाइन इज मच 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 बेटर देन ऑनलाइन। I agree. And what's the reason behind that? It's मैम ऑनलाइन में क्या होता है, टीचर पढ़ाते हैं और बच्चे सुनते हैं। दैट ह्यूमन इंटरैक्शन इज नॉट देयर ओनली। That is what I tell you, na, that unmute yourself and you need to ask all your doubts, clarify it. इसलिए मैंने आपको ये भी ऑप्शन दिया था कि you keep your videos on. But then some students they feel it like नहीं, unnecessary, क्या तैयार होके बैठना पड़ता है ये वो, फिर किसी के घर में कुछ problems होते हैं, मतलब they don't want to just switch on their videos and keep, ये सब problems होने लगे, so then I dropped that idea. Otherwise अगर आप वीडियो चालू करके रखते हो, you will get that what you say, environment of attending online, sorry, offline. Ma'am, but there's still a difference. The classroom environment is still not there. हम जब स्कूल में से ऑफलाइन में पढ़ते थे तो उसके टीचर इज टीचिंग और टीचर बोर्ड पे लिख रहे हैं, वी यूज्ड टू गॉसिप विद आवर फ्रेंड्स आल्सो।
हाँ, So that environment is definitely you are going to miss that environment जब तक खुला रहेगा, जब तक कॉलेज खुलता है, because तब तो वैसे जब फ्रेंड्स आपस में बैठते हैं, दे एंजॉय, बातें करते हैं, लेक्चर्स के बीच में डांट भी खाते हैं टीचर्स की, एम आई राइट? कि बातें क्यों yes, कर रहे हो, ma'am. लड़के लड़कियों को देखते हैं, फिर लड़कियां लड़कों को देखती हैं, शर्माते हैं, ये सब चीजें सब नहीं हो रही है ना अभी, एम आई राइट? I was just talking about the first point, not the rest. Exactly. नहीं 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 नहीं, but that is a part of your life, so you can't just let it go. अरे ये तो अभी हम ऐसे बात कर रहे हैं तो you are feeling that shyness is coming, but otherwise it is normal ना when you're going to college. Definitely Yes. not. इतने सारे कपल्स बन जाते हैं and बहुत सारी चीजें होती है, so that part is being missed, I know that. Okay, of course along with that the main thing which you are missing here is the interaction with your teachers, correct? Yes, ma'am. Because तो when कभी you're क्लास में faced हंसी Yes. मजाक भी होता है. able to, हाँ, you'll be able to understand also more, क्योंकि टीचर के फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो जेस्चर्स होते हैं, from that the understanding definitely becomes more, and you all are missing And through. ma'am, what's funnier is schools have started offline. Yeah, schools have started, but schools also I think they've started only 8th 9th 10th. मैम बोल रहे थे कि 15 से they will be starting for 1 to 7 also. मतलब tentative है, it's not sure. No parents are ready to send their children. Okay, Even in our college, they have not got a 45% consent, so they're not able to start. yeah, that's what. No, till they don't get consent from the parents, see who will send, you only tell. My dad would send. He हम would, लोग तो ready है आने को. My parents are ready. Mom, my But then- dad is not ready. My mother is fine, but my dad is Yeah, not. but even if they are ready, you know, they still may, मतलब वो पीछे मतलब mind में वो thoughts होंगे, पता है कि what if my child is going and she's Ma'am, now exposed. after COVID has come, this thought will always be there. हाँ, But that at fear some is point of time, there, we have to come over it. but then you have to get vaccinated, my dear. My dad's fine after the first vaccination, but there's no news for vaccination. You all are too young to get 18 के अंडर नहीं दिया है ना अभी तक vaccination. No, mom, that's what I'm talking about. There's no news. हाँ, so once you're vaccinated, then the parents will definitely have that confidence to send you, मतलब वो fear factor कम हो जाता है, because एक बार vaccination है तो we are sure कि चलो हाँ होगा भी तो it's not going to be that, it's not going to have that same effect. So like me, for me, I have got all my children, मतलब I have 2 children, both my children are vaccinated. In spite of that, still I have a fear of sending my child to college. Okay, though she has to attend Ma'am, I have because a younger sibling who is like in school now. हाँ, Even though we are not vaccinated, he is going to school every day. he's in which class now? 9. Okay, so you have to tell him that mask वगैरह he's not supposed to remove when he's going to school. Mask is supposed to be worn only throughout. Only while eating his tiffin he can just sit somewhere aside, मतलब दूर सबसे, खाना खाने के टाइम बस मास्क निकाल दिया टिफिन और फिर वापस से मास्क पहन के बैठना है क्लास में. Is he doing that? Ma'am, honestly speaking, आजकल तो even when you go out for say shopping or something just to go around, you see people not wearing masks. And now because everybody is coming to school, friends are talking, nobody is wearing masks. नहीं, but that is मैम actually हम लोग कॉलेज में गए थे तो अभी 10 लोग ही थे और किसी ने मास्क मतलब खाने बैठे तो कोई एकदम बाजू बाजू में ही थे तो कुछ ऐसा कुछ सीरियस हम लोग नहीं भी था. जब भी कॉलेज गए थे स्टार्टिंग में like they had called us once or twice offline. So when I had been, neither the students nor the teachers are wearing masks. the teacher cannot wear because the teacher has to do all the speaking. So if she or he wears mask, तो फिर they will not be able to convey the things properly. So and Yes, ma'am. anyway, Ma'am, your teacher teachers are का तो vaccinated. है. Your teachers are all vaccinated, so you don't have to worry about them. Like they are all vaccinated. तो उनको मतलब अगर होता भी है COVID तो it is not going to be that effective. Like, but the worrisome part is now you
who are actually sitting in the class, and अगर एक को भी होता है then you know it spreads like anything. अभी बीच में ही कुछ I think बैंगलोर में one college there were I think some more than 200 students detected with COVID. सारे MBBS के बच्चे थे. I think you must have heard that news. I don't know the exact number of students, but I've heard about the college. So it was a like all My MBBS. dad was telling us that if you go to college, this is gonna happen there as well. That's what, no? So till the government doesn't vaccinate, I think it's useless to open up the colleges like this. They And are ma'am, increasing. 18 plus got vaccinated second dose also, and now this No, so they Omicron. can start off with the. And then they are saying that this vaccine is not effective against Omicron. ऐसे जैसे Omicron आया फिर कभी Alpha आएगा, फिर Beta Yes, आएगा, ma'am, फिर I Gamma have भी आएगा. also heard this news that Omicron is not effective against vaccine. Omicron, ठीक है, but Omicron is not that deadly virus. ये खाली Even एक. who says that? No, like WHO, sorry. No. You see now so many people are getting that Omicron, but they don't even need hospitalization. मैम ये लोग गवर्नमेंट वाले सीधा धारावी से स्टार्ट करते हैं, सब जो भी होते हैं धारावी धारावी करते हैं, बताने के लिए. We should be proud that धारावी अगर एक बार सिक्योर हो जाता है तो फिर वो स्प्रेड इतना ज्यादा नहीं होगा वायरस का. You can imagine वो अगर नहीं बोल रहा हूँ. धारावी में वायरस अगर ये स्प्रेड हो गया तो then full Mumbai is going to have that. Okay, then you can't stop it. It's like that. So that is why they start with these areas first. नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ मैम, मैं खाली बोल रहा हूँ कि केस उसमें ज्यादा दिखाते हैं. नहीं, धारावी में अभी कहाँ है केसेस, हार्डली है. इनफैक्ट धारावी जो स्टार्टिंग में हुआ था अभी तो लाइक इट्स ऑलमोस्ट उससे कंपेयर किया तो फिर कुछ भी नहीं है धारावी. जब second wave आया था, it shook the entire Mumbai. I mean, in my colony itself, there were 32 cases in one day. Oh, so then they might have पूरा कॉलोनी को सील किया होगा ना. I mean, our colony is very, very big, so it's divided into 2 sections. So, जहाँ पे मैं रहती हूँ, जहाँ पे मेरा बिल्डिंग है, वहाँ पे कुछ नहीं था, but the other section was completely sealed. Okay. But unfortunately, हमको तो घर से बाहर निकलने भी नहीं देते थे. I mean, me and my sibling, we never stepped out. हाँ. ठीक है, let's hope for the best. मैम आपको Now हुआ you're है क्या? teaching which center? नहीं, मुझे नहीं हुआ है कोविड. हाँ, You're teaching which center? अंधेरी, बोरिवली, दादर. मैम एंड मैम आप कहाँ पे रहते हो? I stay in गोरेगांव. ओ हाँ. आप लोग सब कौन से सेंटर्स के हो? बोरीवली. अंधेरी, बोरिवली मैम और मिक्स है शायद. नेरुल. Okay. Any अकोला स्टूडेंट्स आल्सो? मतलब अकोला के बैचेस ही अलग होंगे ना. अच्छा, अलग है ना. नहीं, क्योंकि मेडिकल में वो कंबाइन कर लेते हैं अकोला. Yes, ma'am, some batches मैम are मेडिकल में different, सब Lava and all. combined है. हाँ. Medical everything is combined. Every center they have combined. ठीक है, ये बॉन्ड. तो मेडिकल के 500 स्टूडेंट साथ पढ़ते होंगे ना. नहीं, 2 बैचेस में डिवाइड किया ना उनको. अच्छा. तो करीबन 200 के हिसाब से आते हैं. अराउंड 200. मैम आप उनको सिखाते हो क्या मेडिकल बेस वाले को? हाँ, मेडिकल ऑल्सो आई टीच. अच्छा. मैम मेडिकल का ऑर्गेनिक और इंजीनियरिंग का ऑर्गेनिक सेम है कि अलग है? मेंस के लेवल का है मेडिकल का, नॉट एडवांस लेवल. नीट में मेंस तक ही कराते हैं और आगे नहीं करवाते हैं. नहीं है, मेंस तक ही करवाते हैं. हाँ मैम. ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ समझा है, बॉन्ड ऑर्डर. हाँ मैम समझा. Yes, ma'am. ओके, ये है फर्स्ट एप्लीकेशन. नाउ गोइंग फॉर द सेकंड एप्लीकेशन.
What is SC reactions? Substitution, वो Electrophilic substitution, yes. Also known as electrophilic aromatic substitution reaction. मैम ये फोर्थ मॉड्यूल हम लोग का कभी तक चालू होएगा? ये अभी थर्ड मॉड्यूल में लास्ट चैप्टर कौन सा है? हम लोग इसके बाद GOC है, उसमें आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म इज इन मॉड्यूल 4. आइसोमेरिज्म एंड वो रिएक्शन करके भी एक चैप्टर है. रिएक्शन मैकेनिज्म. हाँ मैम. हाँ यही वही. हाँ तो वो सब 11th स्टैंडर्ड का पार्ट ही है, तो वो अभी आई थिंक नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा. मैम बोलते अच्छा. हैं 11th का पार्ट है बट टेक्स्ट बुक पर लिखा है स्टैंडर्ड 12. नहीं नहीं नहीं, 11th का है वो. मैम और अपना ये क्या बोल रहा था, मैं भूल गया मैम. मैकेनिक्स क्या होता है वो समझ में? रिएक्शन मैकेनिज्म होता है. मैकेनिक्स तो फिजिक्स में होता है. अच्छा, क्योंकि उसमें मैकेनिक्स लिखा था कुछ तो इसलिए. रिएक्शन मैकेनिज्म इज केमिस्ट्री. मैकेनिज्म्स करेंगे हम. ओके, वो क्या होता है, आई विल बी डूइंग दैट इन डिटेल, डोंट वरी. मैम आपने Okay, ऑर्गेनिक डिटेल में किया हुआ है एज अ करियर. I have done my PhD in organic. ओह सो डॉक्टर मैम. Yes, so I have done 12th तक तो किया है organic. 12th के आगे 3 साल और for graduation organic I have done. Graduation के बाद post graduation 2 years organic, and then I have done 4.5 years of PhD. In fact, I couldn't complete my PhD due to some reason, but I have done PhD in But organic. you're still a doctor. नहीं नहीं, डॉक्टर नाम नहीं लगा सकते ना, because I didn't submit my thesis. My guide, he expired before I could complete. So then I had to search for another guide. So मैम that डॉक्टर से अच्छा बेस्ट टीचर हो मैम, बहुत मस्त सिखाती हो. अच्छा. Doctor as in not that doctor. So that guy, that I had to change over to my, like, for some other person, for a guide. So then he didn't want the topic what I was working on. He wanted me to change the topic, which would take me another 4 years. Exactly. I mean, So it was doctor, so if you're writing a frustrating, and thesis, yeah. it will take a lot of time. And in fact 6 months I was just at home because वो कोई guide ही नहीं मिल रहा था who wanted to continue with that topic. So then I left मैम it. जो अच्छा हुआ मैम, आप हम Ma'am? लोग का टीचर बने, हम लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ मैम. Ma'am, to do PhD, we need a guide. Yeah, you can't otherwise. ठीक है. अच्छा, ये अभी second application है to compare the reactivity of aromatic compounds towards electrophilic aromatic substitution reactions and to predict the directive influence of functional group towards the electrophilic attack. अच्छा, ये पूरा लिख लो. After this, I'm going to give you a list of all the functional groups. You just copy that, and then I will tell you how to use that list. फंक्शन ग्रुप लिस्ट. नहीं, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, वो सब पूरा एक लिस्ट देने वाली हूँ मैं, which you have to copy. तो पहले ये लिख लो, उसका हेडिंग लिख लो, then I'll give you the list. पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव लाइफ. क्या पॉजिटिव क्या? अरे मैं माइक ऑन हो गया था वैसे. मैं वो तो मैं बुक के पीछे लिखा था, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव लाइफ. Good, nice. Always be positive. ऐसा भी मैं भगवत गीता में लिखा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है. हाँ, पढ़ते हो भगवत गीता? अरे नहीं मैम, ये No, पढ़ने का ma'am. टाइम नहीं है, तो वो किससे पढ़ूंगा मैम. मैम एक तो इसके लिए मतलब you study for JEE, you study for college, and then I'm also pursuing other studies. There's absolutely no time.
but time has to be managed, huh? Ma'am, now other than Things that, will get in lockdown, very uglier when you get into your 12th. So please don't take any backlogs for the 12th standard. सारे जो chapters है 11th के 11th में ही पढ़ के खत्म करो उसको. मैम मेरे को बैकलॉग है तो मैं कैसे कंप्लीट करूँ? बहुत बैकलॉग है मेरा. वो अभी आपको 11th में ही कंप्लीट करना है. Try to cover it anyhow by April. मतलब मार्च तक पूरा कंप्लीट करना ही है आपको. जो नए चैप्टर्स हैं वो नए चैप्टर्स अभी पहले करो. जो रेगुलर अभी जो चल रहे हैं ना, concentrate more on हाँ. that. At least 5 days in a week or 6 days in a week, you just do the chapters which are going on in the class. Or 1 day in a Okay. week you give for that backlog. Sunday मैम supposing Sunday का पूरा दिन backlog ले लो, backlog कर लो. ठीक है मैम. मैम क्योंकि ये आप जो सिखवा रहे थे ना वो एसपी वाला, वो मेरे बैकलॉग में ही था वो वाला चैप्टर. मेरे को इसलिए नहीं आ रहा था. हाँ, ताकि तो मेरे को आ बैकलॉग के जाता. लिए एक दिन रखो और उसको करते जाओ धीरे धीरे, वरना बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा. 11th का हम पूरा सिलेबस जो है 17 चैप्टर्स जो है केमिस्ट्री के, वो हम 1 साल लगाते हैं करने के लिए, अप्रैल टू अप्रैल. और बाकी के जो 16 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के वो हम 5 या 6 महीने में कराते हैं, बिकॉज 12th में आपको सिर्फ बहुत 5 महीने मिलेंगे. उसके बाद तुम्हारे जर्नल कंप्लीशन आएगा, प्रोजेक्ट वर्क आएगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस विल बी क्लोज. मैम ये करना सब है. JEE के लिए, हाँ, practical and all for Board. engineering entrance. yeah, then you'll have practical exams. Practicals के लिए जाना भी पड़ेगा ना, पहले सीखना तो पड़ेगा ना प्रैक्टिकल करते कैसे हैं. मैम मतलब जेडब्ल्यू इसके लिए प्रैक्टिकल होगा? 12th के लिए तो होगा ना प्रैक्टिकल. हाँ मैम वो तो मेरे को पता. हाँ, बोर्ड एग्जाम्स 12th के के लिए लिए तो भी मैं प्रिपरेशन पूछ रही रहेगा थी ना कि आपका. 12th is going to be your board engineering exams, होता am I है. right? And you need a minimum, I think, of 75% now in your boards Yes, ma'am. for the Yes, JEE. ma'am. So you have to score that 75% minimum aggregate. So you have to study for your boards as well. Yes मैम. So This is 12th is also going to be important. 12th is going to be very, very difficult. Now only I'm telling you. So I'm warning you right away. Be very careful now. Backlog सारा complete कर लो जो भी है 11th standard का. और सबसे पहले तो जो रेगुलर चैप्टर्स चल रहे हैं उस पे ज्यादा कंसंट्रेट करो. Okay? Ma'am, the boards will be Okay, ma'am. around March, right? February. But then we have the second attempt around Feb. Jan हाँ, first that is there attempt. every year, no? Students have to manage. Okay, ma'am. अच्छा ये लिख लिया मैम ये ये हो head? हाँ, अब ये जो लिस्ट दे रही हूँ वो कॉपी कर लो. वैसे अभी टाइम भी नहीं बचा है, लेक्चर ऐसे खत्म हो गया. मैम इसका पीडीएफ है क्या लिस्ट का? नहीं, तो आप भेज दो ना तो मैं लिख सकता हूँ उसमें. मेरे Ma'am, you दिमाग can actually on Zoom you can save these slides on which you are writing, and then you can send the pictures. I can save, हाँ, that I know I can save. But then you Yeah. can imagine I'm having 3 lectures every day. कितना save करूँ कंप्यूटर पे? Yes, ma'am. Or you can just screenshot whatever you're not able to write it down. हाँ. I'll give you in the next lecture, tomorrow's lecture only, because this is going to take time. ठीक है? ओके मैम. क्योंकि हाँ third lecture आ रहा है अभी. ठीक है? Yes, ma'am. So the list I'll continue in the tomorrow's lecture. At least exercise 2 थोड़ा बहुत अगर if you get time देखो अगर कर पाते हो थोड़ा बहुत. ठीक है? ओके मैम. Thank you, ma'am. बाय मैम. I'll थैंक see यू you all मैम. tomorrow. Thank you, Yeah, ma'am. Thank yeah. you, ma'am. Bye.